Namaste everyone and welcome to yet another day, yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. I will be discussing CAT 21 slot 3 का एक interesting set. Let's apply fate framework. So that's it. This is the set. दो छोटे छोटे paragraphs. Typically we categorize this in the form of either caselets की case study के form में, दो paragraphs के form में, rather than giving you direct data in table form or a graph form. They'll give you paragraphs for some amount of data, or we categorize this as simple puzzle. So each of the bottles mentioned in this question contains 50 ml of liquid. The liquid in any bottle is either 100% pure content or can have certain amount of impurity. So just by observing it and reading the first two sentences, I'll say that this is a puzzle based on bottles containing some impurity. This is not something that we are familiar with. In terms of ambiguity of clues, now they are saying visually it is not possible to distinguish. There is a testing device which detects impurity as long as the percentage is 10% or more. So just on the basis of this, I'll say that it's not difficult or complex in terms of understanding, but there'll be a lot of solving that we might need to do to cross check कि ये 10% से ज्यादा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या. तो पॉसिबल सिनेरियोज बहुत सारे बन जाएंगे. तो क्लूज के हिसाब से एम्बिग्विटी तो नहीं है, बट टाइम कंजम्पशन का आई हैव नो आइडिया. लेट्स क्विकली अप्लाई the extra info in questions. All four questions have extra information, so this is definitely not in my favor. As a result, because extra info questions में है familiarity नहीं है, I'll put a question mark on time consumption. I'll not keep this as one of the sets to be done. एग्जाम के पर्पज से मैं ये फर्स्ट 2-3 सेट्स का पार्ट नहीं रखूंगा. I'll keep this at the back end. कुछ नहीं बना तो एक आध क्वेश्चन पजल के फॉर्म में सिंपली सॉल्व हो पा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज I'll not do this set. Having discussed this, now let's understand what is the essential understanding that we are required to have. In fact, first question पे ही चल लेते हैं and then parallelly I'll explain the meaning of the two paragraphs as well as try and solve the first question. So पहले first paragraph में क्या बोला है? First important message is each of the bottles mentioned in this question contains 50 ml of liquid. तो जो भी bottle लोगे 50 ml की quantity है. The liquid in any bottle can be 100% pure content or can have certain amount of impurity. तो दो variables P और I. P refers to pure, 100% pure, और I refers to some amount of impurity. Visually it is not possible, मतलब देखते से पहचान सकते हैं कि किस बॉटल में प्योर कंटेंट है, किसमें इम्प्योर है. There is a testing device, पर टेस्टिंग डिवाइस क्या करेगी? टेस्टिंग डिवाइस डिटेक्ट कर लेगी impurity as long as the percentage of impurity in the content tested is 10% or more. तो मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, इतना पार्ट पढ़ने के बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने टेस्टिंग डिवाइस पे किसी बॉटल के कंटेंट को टेस्ट करा एंड द रिजल्ट दैट यू गॉट वाज इम्प्योर, द रिजल्ट दैट यू गॉट वाज इम्प्योर, आपको पता पड़ गया कि इम्प्योरिटी है, तो कैन यू टेल मी कि परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी क्या है? तो विल से कैन नॉट बी डिटरमाइंड. बट कैन यू से द रेंज ऑफ इम्प्योरिटी? तो विल से यस, द रेंज ऑफ इम्प्योरिटी डेफिनेटली इज 10% और मोर, तो 10 या 10 से ज्यादा परसेंट की इम्प्योरिटी है. Up second, more important and more challenging question for you based on the meaning of first paragraph. Suppose you test a bottle and the content or the result of the test says that the bottle is pure. अगर रिजल्ट टेस्ट का आ गया, एक बॉटल के कंटेंट को आपने टेस्ट करा और उसका रिजल्ट प्योर आ गया, तो आप क्या बोल सकते हो? क्या वो प्योर है कंटेंट? नहीं. आप ये बोल पाओगे कि कंटेंट या तो पूरा प्योर है या impurity 10% से कम है. तो इन जनरल कैन आई से इफ द टेस्ट रिजल्ट, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से इसको हाईलाइट कर ले, इफ द टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव इन द सेंस impurity डिटेक्ट करी है, तो impurity डिटेक्ट करी है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% होगा, और नहीं करी है तो मतलब लेस देन 10% है. अब वो 0% हुआ तो पूरी प्योर है. पर अगर आपका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है कि impurity डिटेक्ट नहीं हुई है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्योर है. यू विल ओनली से दैट लेस देन 10% हो सकती है impurity का कंटेंट. नाउ दे आर सेइंग फॉर एग्जांपल, सपोज बॉटल 1 कंटेन्स ओनली P and bottle 2 contains 80% P and 20% I. If content from bottle 1 is tested, it will be found that it contains only P. तो ठीक है, पहली बॉटल तो पूरी 100% प्योर थी, वो प्योर बता देगा. If content of bottle 2 is tested, the test will reveal that it contains some amount of I. It cannot identify the percentage कि भाई 23% impurity है, ये नहीं बता सकता. 10% से ज्यादा हुई तो बोल देगा impure तो है.
कितना परसेंट इम्प्योर है वो नहीं बता सकता. सो इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी. If 10 ml of content from bottle 1 is mixed with 20 ml content from bottle 2, तो ये ट्राई कर लेते हैं. What does this mean? 10 ml from bottle 1 and 20 ml from bottle 2. तो आपने इतना कंटेंट निकाला और बॉटल 1 में क्या था? ओनली पी. तो मैं इंप्योरिटी का परसेंटेज लिख दूं 0%. बॉटल 2 में इंप्योरिटी का परसेंट कितना है? 20%. तो नाउ क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए साइड में रखो या पैराग्राफ को साइड में रखो. आप वेटेड एवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करो. दिस इज क्वांटिटी, दिस इज परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटी. एक 10 ml में 0% इंप्योरिटी, 20 ml में 20% इंप्योरिटी. जब मिक्स करके इंप्योरिटी का वेटेड एवरेज निकालोगे तो एक्चुअल इंप्योरिटी, ये हम टेस्टिंग नहीं कर रहे, ये हम एवरेज का, वेटेड एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके खुद डिटरमाइन कर रहे हैं. टेस्ट साइड में गया अभी. हम तो बस अगर ये डेटा गिवन है तो ओवरऑल मिक्सचर की इंप्योरिटी कितनी आएगी फैक्चुअल लेवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं. तो 10 into 0 वैल्यू from bottle 1 will be 0% impurity. 20 into 20 will be 400. Total quantity will be 400 and total volume will be 400. और यहाँ पर quantity ली हमने 30. तो percentage of impurity आ जाएगा 400 by 30 which is 40 by 3 which is 13.33% impurity, which means mixture will have 13.33% impurity. अब ये 10% से ज्यादा है, मतलब जब आप टेस्टिंग डिवाइस पे रखोगे तो इसका रिजल्ट क्या बताएगा वो कि इम्प्योर है मिक्सचर. सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. द टेस्ट विल शो दैट मिक्सचर हैज इम्प्योरिटी एंड हेंस वी कैन कंक्लूड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू बॉटल्स, दोनों में से किसी एक बॉटल में इम्प्योरिटी है. वैसे तो उन्होंने दे दिया कि बॉटल बी में है, बट अगर पता ना भी हो और आपको ऐसा रिजल्ट मिले, मतलब गारंटी है कि दोनों में से एक में तो इम्प्योरिटी है, क्योंकि अगर दोनों प्योर होती तो फिर वो टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता इम्प्योरिटी. However, if 10 ml from 10 ml content from bottle 1, अगर bottle 1 का 10 ml ले quantity and mixed with 5 ml of content from bottle 2 के 5 ml को ले लें और अब परसेंटेज इंप्योरिटी यहाँ पर तो 0% है, यहाँ पर 20% है. तो अगर हम एक्चुअल फैक्चुअल वैल्यू निकालें तो दिस इज 0, दिस इज 100, दिस टोटल इज 100. 100 डिवाइडेड बाय 15 सिंप्लीफाई करोगे तो 1 by 15 is 6.66%. तो 6.66% फैक्चुअल इंप्योरिटी है जो हमें पता है. टेस्टिंग डिवाइस इसको क्या बोल देगी? प्योर. टेस्टिंग डिवाइस क्या बोलेगी? द टेस्ट विल नॉट डिटेक्ट एनी इंप्योरिटी इन द रिजल्टेंट मिक्सचर. तो ये सही बात है, 10% से कम है, डज नॉट मीन ये प्योर है. इंप्योरिटी नहीं है ऐसा डिवाइस बोल रही है, इसका मतलब 10% से कम है. तो आई होप फेयर आइडिया लग गया कि दिस इज हाउ योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू गेट डिजाइन. नाउ क्वेश्चन 1 says 5 ml of content from bottle A is mixed with 5 ml of content from bottle B. तो 50-50 ml की बॉटल है, लेकिन आप उनमें से 5-5 ml क्वांटिटी निकाल ले रहे हो. The resultant mixture when tested detects the presence of I. What do you mean by this? Detects the presence of I. इसी को हमने कंक्लूड करा है कि impurity का overall percentage has to be greater than equal to 10%. If it is known that bottle A contains only P, bottle A में तो impurity कुछ है ही नहीं, 0% impurity है. और बॉटल बी की इंप्योरिटी का परसेंट नहीं पता, पर पक्का पता है कि इंप्योरिटी तो है बिकॉज टेस्ट ने इंप्योरिटी डिटेक्ट करी है. नाउ ओवरऑल अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो दिस इज 0, दिस इज 5x, ग्रैंड टोटल विल बी 5x plus 0 which is 5x, टोटल क्वांटिटी विल बी 10. तो ओवरऑल इंप्योरिटी का परसेंटेज आएगा 5x by 10 which we know for sure is what? greater than or equal to 10. तो which means अगर कैंसिल कर दें so 5x by 10 has to be greater than equal to 10. मैं कैंसिलेशन कर रहा हूं, 5 से कैंसिल करा 2 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x greater than equal to 20%, which means what? जो बॉटल B वाली है, सेकेंड बॉटल है बॉटल B, उसमें इंप्योरिटी का परसेंटेज कम से कम 20% का है. कम से कम 20% इंप्योरिटी तो है. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वॉल्यूम ऑफ इंप्योरिटी इन बॉटल B. बॉटल B की इंप्योरिटी कितनी होगी इसके वॉल्यूम को लेकर. Remember this part that each bottle is actually 50 ml का लिक्विड. Don't go by just 5 ml. 5 ml तो हमने एक्सट्रैक्ट करके मिक्स करा है. तो बॉटल बी में 50 ml टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है, उसका कम से कम मिनिमम 20% तो इंप्योरिटी निकलेगी निकलेगी. कैंसिल करें 1 by 5, 5 से कैंसिल करा 10 ml, तो मिनिमम 10 ml इंप्योरिटी तो है ही. आंसर विल बी 10 ml और मोर. तो 10 ml और मोर इज चॉइस है, दैट्स योर आंसर. अब वंस यू हैव सीन दिस इट बिकम्स इजियर टू इंटरप्रेट. अगर आप एक बार और अब इस क्वेश्चन को सोचोगे, सॉल्व करने का थॉट दोगे तो बहुत इजी लगेगा. आप इसको ऐसे लेके चलो परसेंटेज के सिंपल टर्म्स में कि ए और बी से दोनों से इक्वल लिया है,
एक में तो 0% है, तो दूसरे में कम से कम 20% होना ही पड़ेगा ना, ताकि ओवरऑल 10% आए। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। ये सॉल्व करने के बाद बहुत इजीली लगता है, क्योंकि once you try and get into the flow of solving a question, you will try and write down the values, and that is what I did. उसमें भी आ गया आंसर, बट एग्जाम में हम इसी तरह शायद कर पाएंगे। एग्जाम के बाद अभी लर्निंग वाले फेज में यू कैन ऑलवेज से दैट दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यू कैन से इक्वल इक्वल वॉल्यूम लिया है, जीरो में क्या मिक्स करे कम से कम कि 10% वेटेड एवरेज बन जाए, तो जीरो में कम से कम 20% तो लेना पड़ेगा। 50 ml का 20% कितना होता है? 10 ml, कम से कम 10 ml तो आएगा। आप ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। So I hope question 1 is clear. Question 1 के बाद let's look at question 2. There are 4 bottles. Each bottle is known to contain only P or only I. So 4 bottles हैं. So bottles के numbering कर दूं मैं B1, B2, B3, B4. Each bottle can either contain only P or only I. या तो सब में प्योर है या सब में इम्प्योर है, मतलब 0% impurity और यहां 100% impurity. They will be considered collectively ready for dispatch if all of them contain only P, which means once you find that all the 4 bottles are pure, only P वाला है, क्योंकि बचे हुए में तो फिर pure impurity 100% है. So now they are saying in minimum how many tests is it possible to ascertain whether these 4 bottles are collectively ready for dispatch? Let's understand this question. They are asking minimum number of tests. कम से कम कितने टेस्ट करने पड़ेंगे आपको ये डिटरमाइन करने के लिए कि कलेक्टिवली क्या वो रेडी है डिस्पैच के लिए. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. कैन यू टेल मी द पॉसिबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? आप पॉसिबल आंसर बताना कि क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है. क्वेश्चन ये है, are these bottles collectively ready for dispatch? Imagine you are working as an operations manager, you get a set of 4 bottles in one chunk. 4 bottles का सेट मिल गया. अब as a senior manager to you, I am asking you, क्या ये 4 bottles ready for dispatch है? Tell me quickly. तो you will say, sir, yes, they are ready. Or you will say, no, they are not ready. एक तीसरा रिस्पॉन्स हो सकता है, sir, I don't know. तो भाई टेस्ट वेस्ट करके बता दो. But effectively, the broad level answers that you can have for determining whether these 4 bottles are ready for dispatch, so you only need to determine this. Yes, they are ready for dispatch. No, they are not ready for dispatch. तो इस पोजीशन में आने के लिए कि आप अपने सीनियर मैनेजर को बता पाओ कि yes sir, they are ready और no sir, they are not ready, इस पोजीशन में आ पाओ, इसके लिए आपको कितने मिनिमम टेस्ट करने पड़ेंगे? Why is this important? Because the question is not asking कि कौन सी बॉटल में इंप्योरिटी है या कितनी बॉटल्स में इंप्योरिटी, ये सब नहीं पूछ रहे. They're just asking a simple question. Are these bottles collectively ready for dispatch? Yes or no. Perfect. तो अब डिटरमाइन कैसे करें? सपोज सिनेरियो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा सिनेरियो हुआ कि चारों बॉटल्स में ही प्योर है, चारों बॉटल्स में ही प्योर है, मैं सबका इक्वल इक्वल अमाउंट ले लेता हूं. सब में से मैंने 10 ml निकाल लिया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. और अगर चारों ही प्योर होंगी तो उसका रिजल्ट प्योर ही निकलना है, सब में 0% है. तो कैन आई से दिस विल गिव मी एन आंसर? यस. चारों में से इक्वल निकाल लिया. एक सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई 3 बॉटल्स में प्योर है, एक में इम्प्योर है, और जिसमें इम्प्योर है उसमें 100% इंप्योरिटी है. सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज 0%, दिस इज 0% इंप्योरिटी, 0% इंप्योरिटी, दिस इज 100% इंप्योरिटी. अगेन मैं टेस्ट तो वही कर रहा हूं, एक ही टेस्ट कर रहा हूं, सब में से इक्वल निकाला, बट हमें पता नहीं है कि रेडी फॉर डिस्पैच है या नहीं. तो अगर एक में इंप्योरिटी हुई तो क्या ये रिजल्ट इंप्योर वाला दे पाएगा, ये चेक कर लेते हैं. सो व्हेन यू टेक अ वेटेड एवरेज, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होगा 100 का, डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग 4 इक्वल बॉटल्स. 10 ml आप निकालोगे तो 100 into 10 1000 क्वांटिटी आ जाएगी. मैं लिख देता हूं क्वांटिटी 10 ml सबकी ले ली, बट सीधे रेशियो 1:1 से भी कर सकते थे, 10 10 10. सो जब आप टोटल करोगे तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, दिस विल बी 1000 एंड 10 10 10 40 ml, तो डिनोमिनेटर में विल गेट 40. तो जब आप डिवाइड करते हो तो यू गेट व्हाट? 25% इंप्योरिटी फैक्चुअल वैल्यू. अब ये जब डिवाइस पे जाएगी टेस्टिंग के लिए, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 10%, इज इट अ गारंटी कि क्या ये इंप्योरिटी देगा? यस. सो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा दैट नो, दे आर नॉट रेडी फॉर डिस्पैच बिकॉज दे हैव इंप्योरिटी. कलेक्टिवली रेडी फॉर डिस्पैच कब होते हैं? जब चारों प्योर हो. इसका मतलब क्या है? मैंने अभी एक ही टेस्ट करा है. यू माइट से सर 2 सिनेरियोज करा है, 2 बार टेस्ट नहीं करा. मैंने बस केसेस बिल्ड करके आंसर निकाला कि अगर एक बॉटल में भी इंप्योरिटी है, एक बॉटल में भी, 3 तो प्योर ले लिए, तो मेरा आंसर टेस्टिंग डिवाइस दे देती है कि इंप्योरिटी है,
तो मैं आंसर नो दे पाऊंगा। तो दो ही तो ब्रॉडली सिनेरियोज हो सकते हैं। आप जब टेस्टिंग करोगे, टेस्ट का रिजल्ट एक ही टेस्ट करवाना है, 4 बॉटल्स का सैंपल मिल गया, आप सब में से इक्वल इक्वल क्वांटिटी ले लो, टेक इक्वल क्वांटिटीज फ्रॉम ऑल, गो फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा, टेस्टिंग का रिजल्ट आएगा इंप्योरिटी है, तो फिर आप बोल दोगे नो दे आर नॉट रेडी फॉर डिस्पैच। टेस्टिंग का रिजल्ट आ गया दैट देयर इज नो इंप्योरिटी, देन यू विल से दे आर रेडी फॉर डिस्पैच। तो व्हाटएवर बी द केस, अगर एक में ही आ गया, यू माइट से सर तीसरा केस भी तो बनेगा कि 2P और 2I, होने दो 2P और 2I, तब भी एश्योरेंस है कि मेरा आंसर नो दे आर नॉट रेडी फॉर डिस्पैच आ जाएगा। तो टेस्ट तो एक ही करना है ना। थिंक ऑफ इट दिस वे, आप नया मेरे पास नेक्स्ट 4 बॉटल्स का सेट लेके आते हो, तो मैं फिर से उनको टेस्टिंग पे भेज दूंगा। अगर टेस्टिंग में इंप्योरिटी डिटेक्ट हुई, मतलब दे आर नॉट रेडी फॉर डिस्पैच, बिकॉज मुझे चारों बॉटल्स में प्योर चाहिए था टू बी कॉल्ड collectively ready for dispatch. So correct answer, minimum number of tests required is just 1. And how do you test this? By taking equal amounts from all 4 bottles and test. Take equal amounts from all 4. Let's look at question number 3. There are 4 bottles. It is known that 3 of the bottles contain only P. 3 bottles में सिर्फ P है. While the remaining contains 80% P and 20% impurity. तो जो चौथी बॉटल है उसमें 80% P और 20% impurity, ऐसा डेटा गिवन है। Now they are asking what is the minimum number of tests required to definitely identify the bottle containing some amount of impurity. कैसे ढूंढे ये वाली बॉटल? तो just for understanding हम ऐसा मान लेते हैं कि the 4 bottles are let's say B1, B2, B3, B4. I don't know कि कौन सी बॉटल में impurity है, किसी एक में तो है। मैं फिर से वही ट्राई करता हूं, सब में से इक्वल सैंपल ले लेते हैं। सब में से इक्वल सैंपल लोगे तो 20/4 5% का वेटेड एवरेज मिलेगा, और 5% इज नॉट गुड इनफ फॉर अस टू डिटरमाइन इंप्योरिटी। और अगर वो निकल भी जाता है कि ओवरऑल इंप्योरिटी निकल भी गई है एक से, तो ये पता रहता है कि चारों में से किसी एक में है, किस में है ये पूछ रहे हैं। दे आर आस्किंग व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट रिक्वायर्ड टू डेफिनेटली आइडेंटिफाई द बॉटल कंटेनिंग सम अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी, व्हिच मींस एक टेस्ट तो नहीं डिटरमाइन कर पाएगा। नाउ व्हाट? सो what I'll do is I'll group them in groups of 2. मैं कोई सी भी 2 बॉटल, मुझे नहीं पता है किसी में इंप्योरिटी है किसमें नहीं है, मैं कोई सी भी 2 बॉटल उठा के उनके कंटेंट्स इक्वली मिक्स करके टेस्टिंग पे डाल दूंगा। दिस विल बी काउंटेड एज 1 टेस्ट। अब उस टेस्ट का रिजल्ट क्या आ सकता है? सपोज उस टेस्ट का रिजल्ट इंप्योर आ गया, इंप्योर आ सकता है क्या? सपोज यहाँ 0% इंप्योरिटी है और ये इंप्योरिटी वाली जो बॉटल है वो इसी में आ गई हो सपोज, तो 0 और 20 का इक्वल मिक्सचर लोगे तो आपको 10% इंप्योरिटी मिलेगी, तो इंप्योरिटी का रिजल्ट आ जाएगा। आप 2 बॉटल्स एट ए टाइम कर रहे हो, मतलब गारंटी हो जाएगी कि इन दोनों में से किसी में इंप्योरिटी है, अगर ये सिनेरियो रहा। पर अगर ये सिनेरियो नहीं रहा, दोनों की दोनों बॉटल्स कंप्लीट प्योर कंटेंट वाली हो गई, तो देन कैन आई से दैट द रिजल्ट विल शो प्योरिटी। इफ द रिजल्ट शोज प्योरिटी कि देयर इज नो इंप्योरिटी इन दिस, देन I will do a second test. तो पहला टेस्ट तो ये हो गया। अब सेकेंड टेस्ट किसका करूंगा? मैं बॉटल B3 का कर लूंगा इंडिपेंडेंटली। मुझे पता है इन दोनों में तो प्योर बॉटल्स ही हैं, इनमें वो इंप्योरिटी वाली बॉटल नहीं है। मैं B3 उठा लूंगा और उसका टेस्ट कर लूंगा। अब अगर उसका टेस्ट करा तो सिंगल बॉटल का तो हमें पता पड़ ही जाता है कि प्योर है इम्प्योर है। सपोज ये इम्प्योर आ गई तो हमें बॉटल मिल गई, सपोज ये भी प्योर आ गई तो B1 B2 प्योर थी, B3 भी प्योर आ गई, तो then we know for sure that B4 is the impure one. तो any which way एक टेस्ट, this is test 1 for B1 B2 and this is test 2 for B3. तो 2 टेस्ट में आपका काम हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट पूछे, 2 टेस्ट में काम हो गया। सपोज ऐसा होता है कि B1 B2 डायरेक्टली में इंप्योरिटी पता पड़ गई, तो आप बोलोगे सर इस ग्रुप में इंप्योरिटी पता पड़ी है, एक टेस्ट से ग्रुप पता पड़ गया B1 B2 का ग्रुप। अगर ये प्योर आता है तो B3 B4 का ग्रुप है। सेम चीज यहां करते हैं कि अगर यहां इंप्योरिटी आ गई, टेस्ट 1 था, तो सेकंड टेस्ट कहां कर लोगे? सेकंड टेस्ट इन 2 बॉटल्स में ही कर लोगे। सपोज आप B1 को चेक कर लोगे, B1 अगर इंप्योर निकला तो B1 में इंप्योरिटी है, B1 इंप्योर नहीं निकला तो B2 में इंप्योरिटी है। एनी विच वे द मिनिमम नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू विल रिक्वायर विल बी 2। बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट, देयर आर 4 बॉटल्स and it is known that either 1 or 2 of these bottles contains only P. तो या तो एक बॉटल में P है, बची हुई 3 में इंप्योरिटी है, या फिर 2 बॉटल्स में प्योर है, 2 में इंप्योरिटी है। And while the remaining ones contain 15% impurity,
तो यहां मैं लिख दूं इम्प्योरिटी का परसेंटेज प्योर में तो 0 रहेगा, बाकी 3 में 15 15 15, और यहां पर 2 में 0% इम्प्योरिटी, यहां पर 15 15. Now they are asking what is the minimum number of tests required to ascertain the exact number of bottles containing only P. So again question की language पे ध्यान देना. They are asking exact number of bottles containing P. They are not asking which bottles. They are asking number of bottles containing only P. कितनी bottles ऐसी है, मतलब आपको बस ये बताना है कि क्या केस 1 हमारा सिनेरियो है या केस 2 सिनेरियो है, क्या आपके पास एक प्योर है या क्या आपके पास 2 प्योर है. They are not asking number of या which bottle has impurity. तो अगेन आई ट्राई विथ द सेम कॉन्सेप्ट दैट आई यूज्ड एट द स्टार्ट. सारी चारों बॉटल्स में से इक्वल प्रोपोर्शन लेके मिक्सचर को टेस्ट करने का थॉट देते हैं. सपोज पहला सिनेरियो ले लिया तो अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकता हूं. मैं सबका 1:1 अमाउंट रेशियो में ले लूं तो 15 3 45 डिवाइडेड बाय 4 मुझे इंप्योरिटी का परसेंटेज मिलेगा 11.25%. और अगर ये सिनेरियो रहा तो मुझे 30 डिवाइडेड बाय 4 1111, सो 15 इंटू 1 15, 15 प्लस 15 30, 30 डिवाइडेड बाय 4 7.5% का इंप्योरिटी का परसेंटेज मिलेगा. तो मतलब अगर मैं चारों के इक्वल अमाउंट लेके मिक्स करके डाल दूं तो यहां मुझे आंसर मिल जाएगा कि दिस विल गिव मी द रिजल्ट एज प्योर एंड दिस डेटा बिकॉज इट इज मोर देन 10% विल गिव मी द आंसर एज इम्प्योर. तो मैं टेस्ट रिजल्ट के बेसिस पे बता सकता हूं कि आपके पास प्योर एक बॉटल है या प्योर 2 बॉटल है. कब? एक टेस्ट करके. मुझे नहीं पता कि किस बॉटल में क्या है, सब में से इक्वल कंटेंट लेके मिक्सचर बनाया, वो टेस्टिंग पे डाल दिया. टेस्टिंग का रिजल्ट अगर प्योर आ गया तो मैं बोलूंगा आपका रिजल्ट प्योर आ गया, मतलब 2 बॉटल्स में प्योरिटी है, तो ये वाला सिनेरियो है. और अगर आपका रिजल्ट इम्प्योर आ गया विच इज मोर देन 10% इम्प्योरिटी डिटेक्टेड, विच मीन्स यू जस्ट हैव 1 बॉटल ऑफ प्योर एंड 3 बॉटल्स ऑफ इम्प्योर कंटेंट. आई होप ये क्लियर है. तो क्वेश्चन पे ध्यान देना. क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग हाउ मेनी बॉटल्स हैव या विच बॉटल हैज प्योरिटी और इम्प्योरिटी. इट इज आस्किंग मिनिमम टेस्ट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन कि आपके पास एक बॉटल प्योर है या 2 बॉटल प्योर है. तो क्लियर है, 2 बॉटल प्योर होगी तो पक्का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एक बॉटल प्योर है तो पक्का रिजल्ट इम्प्योरिटी वाला आएगा. सो एन इंटरेस्टिंग सेट, अ डिफिकल्ट पजल बेस्ड सेट, 2 पैराग्राफ्स का सेट था. एग्जाम में नहीं है करने लायक, डिस्पाइट यूर फीलिंग दैट यू माइट सी द सोल्यूशन और यू माइट हैव ट्राइड इट विदाउट द एग्जाम प्रेशर ओवर योर हेड एंड यू माइट फील कि बन गए सर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. मेरा ओपिनियन ये है कि एग्जाम में इससे इजी सेट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे. एंड पिक one or two of those sets first, get 12 marks 16 marks in the bank at least, and then go for some kind of adventure to make sure that you are able to get more marks. But ये तीसरा चौथा सेट हो सकता था, not the first 2 sets. That's it from my side. I'll take a leave. Sure.